प्रथमे आमार আজি শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানৰ উপলক্ষে সকলো সংগ্ৰামী জনতাক মই অভিনন্দন জনাইছোঁ। মই যিসকল কমিউনিষ্ট পাৰ্টি গঢ়ি তুলিছিল স্বাধীনতা আন্দোলনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল তেখেতসকলক মই শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ, কোটি কোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ। আৰু আজি এই উপলক্ষে মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি আমাৰ কাৰণে কেৱল গৌৰৱৰ বিষয়ে নহয় 100 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ কাৰণে এটা বৰ্তমানৰ পৰিৱেশত কমিউনিষ্টে এটা গধুৰ দায়িত্ব লোৱাৰ সময় আহি পৰিছে। গতিকে কমিউনিষ্ট পাৰ্টিক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে মই সকলো ৰাইজলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে আপুনি যিটো কথা সুধিছে, আজি যিটো আমি শতবৰ্ষ সামৰণি অনুষ্ঠানলৈ আমাৰ ৰাজ্যখনৰ সকলোকেইটা বিৰোধী যিকেইটা বিৰোধীৰ প্ৰধান ৰাজনৈতিক দলৰ আমি নেতৃবৃন্দক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। তেখেতসকলে অহাৰ মোক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। ইতিমধ্যে 11 বজাৰ আগে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই মোলৈ ফোন কৰিছে যে তেখেতে শুভেচ্ছা জনাইছে। বিশেষ কাৰণত তেখেতে মাজুলীত এটা প্ৰগ্ৰেম ৰাখিব লগা হ'ল, তেখেতৰ মানে তেওঁলোকৰ প্ৰগ্ৰেম বিশেষ কাৰণত ল'বলগীয়া হ'ল বুলি জনাইছে। বাকী প্ৰায়সকল আহিছে, CPMৰ পৰা আহিছে, CPIMLৰ পৰা আহিছে, ফৰৱাৰ্ড ব্লকৰ ফালৰ পৰা আহিছে। লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই অহা কথা আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, খুব সম্ভৱ তেওঁ আহিব। ইয়াৰ উপৰিও অজিত কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়াই পাৰ্লিয়ামেণ্ট চলি আছিলে বুলি কৈছিলে, কিন্তু কালি শেষ হৈছে বুলি কৈছিলে, কিন্তু তাৰ পিছতে আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু এতিয়ালৈকে একো ইনফৰ্ম জনোৱা নাই। গতিকে এই ধৰণে আৰু ভালেকেইজন তেনেধৰণে আমি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, অখিল গগৈয়েও আমাক কনচেণ্ট দিছিল, আমি নিশ্চিতভাৱে থাকিম। কিন্তু যোৱাকালি তেখেতে কৈছে, মোক অৱগত কৰোৱা নাই, কিন্তু মই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে দেখিছোঁ যে তেখেতৰ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত আৰু তেখেতৰ ওপৰত কিবা SIT সম্পৰ্কত কেছ জাপি দিয়াৰ কাৰণে গুৱাহাটীলৈ ঢাপলি মেলিবলগীয়া হৈছে। সেই কাৰণত হয়তো আহিব নোৱাৰিব বুলি আমি ভাবিছোঁ। বাকীসকল যিসকল অতিথি তেখেতসকল নিশ্চিতভাৱে আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ গঢ়ি তোলাৰ পক্ষত সদায় কৈ আহিছোঁ। আমি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে, লুৰিণ গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে, লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া, আমি লেফ্ট পাৰ্টি কেইটাই কৈছোঁ, অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াই কৈছে। কিন্তু কংগ্ৰেছে যোৱা 12 নৱেম্বৰত এখন মিটিং কৰিছে। মিটিংখনৰ জৰিয়তে আমি ভাল ধৰণে কথা বাৰ্তা আলোচনা কৰিছোঁ। অৱশ্যে সভাপতি ডাঙৰীয়াই কৈছে যে জানুৱাৰী মাহত আমি আচলতে এখন সন্মিলনৰ জৰিয়তে ঐক্যবদ্ধ হ'ম, এই প্ৰতিশ্ৰুতিটো তেতিয়া দিছিল। খুব সম্ভৱ সেইকাৰণেই তেওঁলোকৰ নিজৰ এজেণ্ডাৰ ভিত্তিত এই ডিচেম্বৰ মাহৰ কাৰ্যসূচী হয়তো চলাইছে আৰু জানুৱাৰীতে হয়তো মিলিত হ'ম। আৰু এইটো অৱধাৰিত, যদি আমি মানে ঐক্য হ'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বিজেপিক ক্ষমতাৰ পৰা যে আঁতৰিব নোৱাৰে এইটো নিশ্চিত। এইটো সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছে। আমি আজি এই ক্ষেত্ৰৰ পৰা সকলোকে পুনৰবাৰ আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আমি ঐক্যবদ্ধ হ'বই লাগিব। দেশৰ গণতন্ত্ৰ, সংবিধান, দেশৰ জনতাক আৰু আমাৰ সম্পদবিলাক ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব, তাৰ কোনো গত্যন্তৰ নাই। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस साल अपनी फाउंडेशन शताब्दी मना रही है। उसके लिए पूरे देश में प्रोग्राम हो रहा है। आसाम की पार्टी ने आज के दिन इसको सेलिब्रेट करने का तय किया है। शिवसागर इसलिए चुना गया है कि शिवसागर में 31 दिसंबर 1943 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी आसाम में, और उसके बाद आसाम में कई संघर्ष हुए थे। मुझे याद है कि इसी शिवसागर में कॉमरेड प्रमोद गोगाई ने रिफाइनरीज का स्ट्रगल किया था कि रिफाइनरीज शुरू होने चाहिए। लैंड स्ट्रगल भी वो यहीं पर हुआ था कि लैंड डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो ऐसे कई स्ट्रगल कम्युनिस्ट पार्टी ने किए हैं जिसके वजह से दुनिया बदल गई है। तो इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने आज़ादी के पहले भी संघर्ष किया, आज़ादी के लिए संघर्ष किया, आज़ादी के बाद भी पुर्तगीज़ों को हकालने के लिए, फ्रेंच को हकालने के लिए और यहाँ के निज़ाम जैसे लोग जो राजा लोग हैं उनको हकालने के लिए संघर्ष किया था। और उनमें बहुत सी कुर्बानी दी, 5000 से ज़्यादा कम्युनिस्ट मारे गए उसके अंदर। तो इन सबको याद करना ज़रूरी है, और इस सबको याद करेंगे तब शताब्दी वर्ष मनाने का असली मकसद कामयाब होगा। तो मैं शिवसागर की जनता को अपील करता हूँ कि शिवसागर में कम्युनिस्ट पार्टी की जो यादगार है वो बहुत अच्छी है, और उसको याद करते हुए आप लोग इस प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। और एक बात, असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी को हराना ये मकसद नहीं है। असल मकसद है इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है, संविधान की जो रक्षा करना ज़रूरी है, उसको बचाना ज़रूरी है। क्योंकि बीजेपी धीरे धीरे ये ट्राई कर रही है कि पुरानी सब उपलब्धियों को ख़त्म किया जाए। जैसे कि 8 घंटे का काम ट्रेड यूनियन ने मिलाया था, उसको ख़त्म करने के लिए बीजेपी ने 12 घंटे की ड्यूटी कायम की है। मनरेगा ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और जिसके बारे में मोदी जी ने 2014 में पार्लियामेंट में बहुत गलत शब्द इस्तेमाल किए थे। लेकिन जब कोरोना का प्रॉब्लम आया तब उनको मालूम हुआ कि इसका महत्व क्या है, और जब से वो इसको पैसा दे रहे थे। लेकिन अब वो योजना बंद करने के लिए उन्होंने काफ़ी बदलाव किए हैं। जैसा सिर्फ नाम बदल दिया, ये एक बात है, लेकिन नाम बदलने से काम नहीं होगा। उन्होंने फाइनेंस जो
10% पहले स्टेट गवर्नमेंट देता था और 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देता था, वो उन्होंने बदल दिया है। अब 40% स्टेट को देना पड़ेगा, जो स्टेट देने वाली नहीं है, तो ये स्कीम ही बंद होने वाली है। उसके अलावा उन्होंने 60 दिन एग्रीकल्चर के लिए कायम रखे हैं। इस 60 दिन में इस स्कीम को सस्पेंड किया जाएगा। इसका मतलब है ये स्कीम का जो एडवांटेज है बार्गेनिंग पावर बढ़ाने का मजदूरों का, वही खत्म हो जाएगा। तो ऐसी कई बदलाव उन्होंने किए हैं जिसका मकसद साफ है कि वो ये सोच रखते हैं कि अगर मजदूरों की बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी तो मजदूरों को ज्यादा काम मिलेगा। लेबर कोड, 4 लेबर कोड भी उसके लिए उन्होंने लाए हैं कि मालिकों को मजबूत किया जाए और मजदूरों को कमजोर किया जाए। लेकिन ये दुनिया का इतिहास बताता है कि जब कभी भी मजदूरों पे हमला होता है तो मजदूर बड़े पैमाने पे लड़ाई के मैदान में उतर जाते हैं। तो मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान का मजदूर भी बड़े पैमाने पे लड़ाई के मैदान में उतर जाएगा और बीजेपी को हरा देगा। थैंक यू। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।